حکومت پنجاب کی جانب سے رمضان پیکج کے تحت عوام میں مفت آٹے کی تقسیم جاری۔ ضلع انتظامیہ نے آٹا تقسیم کرنے کے مقامات متعین کر دیے۔ ٹاؤن شپ ماڈل بازار میں دن بھر مفت آٹے کی فراہمی کا عمل جاری رہا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے شہریوں کی سہولت کے لیے مفت آٹے کی فراہمی کا وقت بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ شہری صبح 8 بجے کی بجائے 6 بجے سے آٹا لے سکیں گے۔ شہری صبح 6 بجے ہی ٹاؤن شپ ماڈل بازار میں آٹا لینے پہنچ گئے۔ آٹا پوائنٹس پر مرد و خواتین کی لائنز لگوا دی گئی۔ ضلع انتظامیہ آٹا پوائنٹس پر نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے متحرک۔ آٹا تقسیم کرنے کے مقامات پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے عوام کی رہنمائی کے لیے ہیلپ ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت کا بدترین بحران جاری ہے۔ شہریوں کا شہر کے درجنوں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی سپلائی نہ ہونے کا شکوہ۔ شہری کہتے ہیں کہ کریانہ دکانوں پر بھی آٹا نام کی کوئی چیز نہیں۔ کیا پورا لاہور مفت آٹا پوائنٹس کی قطاروں میں لگ جائے؟ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تاہم شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت کا بدترین بحران تاحال جاری ہے۔ گھڑی شاہو، دھرمپورہ، ہربنسپورہ فیکٹری ایریا، فتح گڑھ، الطاف کالونی، ناظم آباد سمیت متعدد علاقوں میں واقع یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا بحران ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آنے والے صارفین آٹا نہ ملنے پر حکمرانوں سے نالہ نظر آئے۔ شہریوں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی کریانہ دکانوں پر بھی سبسڈائز آٹا دستیاب نہیں۔ حکومت بتائے کہ کہاں جائیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ لاہور ڈویژن میں کل 27,40,000 سے زائد فری آٹا بیگز تقسیم ہو چکے ہیں۔ لاہور شہر میں 12,99,928 فری آٹا بیگز تقسیم ہو چکے۔ لاہور فری آٹا تقسیم میں پنجاب میں اس وقت سر فہرست ہے۔ کمشنر لاہور کو بریفنگ۔ کمشنر کہتے ہیں کہ لاہور سمیت تمام اضلاع میں فری آٹا فراہمی سینٹر 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ ہر فری آٹا فراہمی سینٹر پر 25 سے زائد لاگ ان کاؤنٹرز فعال ہیں، جبکہ لاہور سمیت اضلاع میں اہل شہریوں کو 2 آٹا بیگز اکٹھے دیے جانے کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ ہر سینٹر پر میڈیکل ریسکیو رہنمائی اور شکایات کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ کمشنر محمد علی رندھاوا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتظامات کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف کی جانب سے شرکت کی گئی، جبکہ ایڈیشنل کمشنر حامد ملی اور دیگر افسران کی شرکت اور بریفنگ بھی دی گئی۔ لاہور ڈویژن میں کل 27,40,000 سے زائد فری آٹا بیگز تقسیم ہو چکے ہیں۔ لاہور شہر میں 12,99,928 فری آٹا بیگز تقسیم ہو چکے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں بسام سلطان سے۔ جی بسام، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر میں مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جو کمشنر لاہور ہیں چودھری محمد علی رندھاوا، ان نے جو ہے وہ اعداد و شمار کا جو ہے وہ اعلان کیا اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ لاہور شہر میں اب تک جو ہے وہ 12,99,928 فری آٹا بیگ جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ لاہور میں اور پنجاب بھر میں جو ہے وہ مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہر فری آٹا سینٹر پر جو ہے وہ تقریباً 25 سے زائد لاگ ان کاؤنٹرز جو ہے وہ فعال کیے گئے ہیں، تاکہ آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ رش میں نہ لگنا پڑے اور بآسانی آٹے کے فراہمی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے۔ ابتدائی دور میں شہر کے اندر جو ہے وہ 40 کے قریب ٹرکنگ پوائنٹس جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے، جن کی تعداد کو اب بڑھا کر جو ہے وہ 43 کر دیا گیا ہے، کیونکہ جن ایریاز میں ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، رش بہت زیادہ ہوتا تھا، تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ وہاں پر جو ٹرکنگ پوائنٹس ہیں ان کی تعداد کو بھی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً بڑھایا جا رہا ہے، تاکہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ بآسانی آٹے کی فراہمی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے بسام سلطان، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سبزی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ اور بازار میں فروخت ہونے والی سبزیوں کی قیمتوں میں واضح فرق برقرار ہے۔ اوپن مارکیٹ میں سبزیوں کی مد میں 100 سے 130 روپے کلو تک کا اضافی وصول کیے جانے لگے۔ انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ پیاز کا سرکاری نرخ 95 روپے کلو ہے، جبکہ مارکیٹ میں 140 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر سرکاری قیمت 95 کی بجائے 150، لہسن 360 کی بجائے 500، ادرک 630 کی بجائے 700 اور سبز مرچ 120 کی بجائے 150 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ آلو کی بجائے 103 اور مٹر سرکاری ریٹ کے مطابق 145 کی بجائے اوپن مارکیٹ میں 180 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔
इंतजामिया की जानिब से कंटेनर्स और गाड़ियों की पकड़ धकड़ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मरकजी जनरल सेक्रेटरी तारिक नबील की सरबराही में हंगामी इजलास। 10 दिन तक गाड़ियां रिलीज न होने की सूरत में मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया है। जनरल सेक्रेटरी तारिक नबील ने कहा है कि 10,000 से ज्यादा कंटेनर्स मजदे ट्रकों को पकड़ लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। मौजूदा मुल्क की जो सियासी सूरत है उसकी वजह से ना सिर्फ सियासतदान परेशान है बल्कि जो शहर की ताजर बरादरी और ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिका जो बरादरी है वो भी शदीद परेशान है। मामला यही है कि जो हुकूमत की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से पकड़ दकड़ की गई कंटेनर्स की, तो उसकी मद में जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने आज सर जोड़े हैं और हंगामी इजलास तलब किया जिसमें कुछ अहम फैसले हैं वो किए गए हैं। जो सदर हैं आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के और साथ जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी ज़ेर-ए-सदारत आज इजलास हुआ। जनरल सेक्रेटरी तारिक नबील मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी नबील भाई, क्या कहेंगे कि हुकूमत की तरफ से कंटेनर पकड़े गए, इंतज़ामिया कहती है कि हमने अमन और अमान की सूरत को बरकरार रखना है, आप कहते हैं नुकसान हो रहा है, असल माजरा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि हम पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं। प्रोटेस्ट हर पूरी दुनिया में होते हैं। अब देखें, एक रूटीन हमारी बन चुकी है कि कोई इवेंट आ जाए, धरना आ जाए, कुछ सियासी कोई हलचल हो जाए तो ये कंटेनर पकड़ना शुरू कर देते हैं जिसमें इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ताजरों का सामान है, मेडिसन है, खाने पीने की अजनास हैं। अब ये बताएं कि पहले मुल्क इस वक्त माशी हालात किस तरफ हैं, महंगाई किस हद तक जा चुकी है, और जब सामान टाइमली नहीं पहुंचेगा मार्केटों तक, महंगाई में इजाफा होगा और लोग मुतासर होंगे। ट्रांसपोर्ट स्टेशन ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है क्योंकि यही कहना है कि जो हज़ारों की तादाद में कंटेनर, पिकअप और दीगर जो गाड़ियां हैं वो पकड़ी गई हैं, उनके ऊपर रोजाना की बुनियाद पर 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा जो है वो मालकान का आ रहा है, जबकि इसके इवज जो डॉलर की मद में इसके ऊपर सिक्योरिटी है वो अलग है। तो मुतालबा किया है कि 8 से 10 दिन के अंदर मुतालबात तस्लीम किए जाएँ, कंटेनर को रिहा किया जाए, फ्री किया जाए, रिलीज़ किया जाए, नहीं तो पहिया जाम हड़ताल है वो लाहौर समेत मुल्क भर में की जाएगी। ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब की खसूसी काविश, पंजाब पुलिस में 2000 अफसरान एहलकारों को अगले रैंक पर तरक्कियां दे दी गई। आईजी पंजाब ने 41 डीएसपीज को एसपी, 85 इंस्पेक्टर्स को डीएसपी, 270 सब इंस्पेक्टर्स के इंस्पेक्टर्स, सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के ओहदों पर तरक्की की मंजूरी दे दी है। आईजी पंजाब ने एसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 41 एसपीज को नए ओहदे के रैंक्स लगाए हैं। आईजी पंजाब की हदायत पर लाहौर समेत पंजाब भर में कांस्टेबल से एसपी रैंक तक तरक्कियां दी गई। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान आईजी पंजाब ने सीपीओ में तरक्याती बोर्ड का इनेकाद करवाकर अफसरान को तरक्कियां दी हैं। लाहौर समेत तमाम अजला और यूनिट्स में कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर 1500 से ज़ायद तरक्कियों का अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया है। पंजाब में पेंशन और सरकारी मुलाजमीन के अखराजात आइंदा नए माली साल 81 अरब रुपए तक बढ़ने का तखमीना है। महकमा खजाना पंजाब ने वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया है। पंजाब में पेंशन और सरकारी मुलाजमीन के अखराजात मजीद बढ़ गए। नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी हैं जिसमें पेंशन के मद में सालाना अखराजात 31 रुपए बढ़ने का इम्कान है, जबकि ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 49 अरब रुपए के इजाफी अखराजात का तखमीना लगाया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई महकमों की सिफारिशात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें पंजाब के जारी अखराजात में सिर्फ मुलाजमीन के हेड अकाउंट में 81 अरब रुपए बढ़ने का तखमीना लगाया गया है। मंजूर शुदा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में डिवेलपर्स की अजारादारी ख़त्म करने के लिए एलडीए का रूल 54 में तरमीम करने का फैसला किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तर्ज पर 100% मुकम्मल होने वाली प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में सरकार के एक नुमाइंदों को कंट्रोल देने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में महकमे की जानिब से एक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाता है। इसी तर्ज पर सरकार के एक नुमाइंदों को कंट्रोल देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। एलडीए प्राइवेट हाउसिंग रूल्स में डिवेलपर्स हाउसिंग सोसाइटीज़ में खुद डेवलपमेंट और दीगर अमूर का जिम्मेदार है।
निगरान पंजाब हुकूमत ने इंसदाद समूक के लिए लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर कानून साजी की बाकायदा मंजूरी दे दी। महकमे माहौलियात ने समूक के तदारुक के लिए इक़दाम उठाने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। समूक के तदारुक के लिए अब 144 का सहारा नहीं लिया जाएगा। समूक के तदारुक और इक़दाम समेत जुर्मानों के लिए समूक रूल्स 2023 का सहारा लिया जाएगा। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे के मालिक को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माने के साथ भट्टा सील करने की सजा शामिल है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी को 2000 से 4000 रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा, जबकि कूड़े को आग लगाने पर 5000 से 10,000 तक जुर्माना किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जहरीला धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्रीज को 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा और ज़रूरी ज़मीनों में धान की बाकियात को आग लगाने पर 15,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। लाहौर बोर्ड्स को मैट्रिक के सालाना इम्तिहान की निगरानी के लिए अमले की शदीद किल्लत का सामना है। इम्तिहानात की निगरानी कौन करेगा? लाहौर बोर्ड के लिए मामला दर्द सर बन गया। लाहौर में 15,000 में से 11,500 असातिज़ा मर्दमशुमारी की ड्यूटी पर हैं। लाहौर बोर्ड को इम्तिहानात की निगरानी के लिए 5,000 असातिज़ा दरकार हैं। तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तिहान का आगाज़ 1 अप्रैल से होगा। इम्तिहान के लिए 868 इम्तिहानी मराकज़ तश्कील दिए गए हैं। इम्तिहानात की निगरानी के लिए पढ़े लिखे नौजवानों से दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं, ताहम प्राइवेट अमले को ताहाल निगरानी के लिए तयनात न किया जा सका। इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए। स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज़ को इम्तिहान की निगरानी के लिए अमला मुहैया करने की हदायत भी कर दी है। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आमद। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कामरान खान ने CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना का इस्तकबाल किया। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में अहम इजलास। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कामरान खान की CCPO लाहौर को अगराज़ व मकासिद वर्किंग पर ब्रीफिंग। DIG ऑपरेशन अफसाल अहमद कौसर, CEO सेफ सिटीज़ कामरान खान की शिरकत। SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ, SP सिक्योरिटी ऑपरेशन की शिरकत, जबकि इन्वेस्टिगेशन विंग्स के तमाम SP डोल्फन स्क्वाड और CRO ने भी शिरकत की है। कमिश्नर लाहौर DGLDA की ज़ेर सदारत शहर के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के मुतालिक इजलास। गुलबर्ग से डिफेंस मोड तक सिग्नल फ्री मनसूबे समेत दीगर मनसूबों का जायजा लिया गया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान और मुतल्लिका प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में गुलबर्ग से डिफेंस मोड तक सिग्नल फ्री मनसूबे का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया है कि मनसूबे के तहत घोड़ा चौक डिफेंस पर 2 लेन पर मुश्तमिल एक रोया फ्लाईओवर भी तामीर किया जाएगा। सेक्रेटरी महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की सबराही में इजलास। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की माहौल दोस्त बिल्डिंग बनाने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब डॉक्टर साजिद महमूद की सबराही में इजलास में DG माहौलियात और दीगर शरीक हुए। फैसला किया गया है कि ग्रीन बिल्डिंग गुलबर्ग में शेरपाव ब्रिज के पास बनाई जाएगी। महकमे माहौलियात पंजाब के तमाम दफातर को ग्रीन बिल्डिंग में मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर का इजलास। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी मनाने के हवाले से तैयारियों पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर का इजलास हुआ। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी मनाने के हवाले से तैयारियों पर गौर किया गया। इजलास में पार्टी की तरफ से माह मुक़द्दस में अफ्तार पार्टियाँ करने से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम उम्रा की अदायगी के लिए हजाज मुक़द्दस चले गए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हुए। बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीक ने ट्वीट करके बाबर आजम के उम्रे के लिए रवानगी की इत्तला दी। बाबर आजम ने अपने ट्वीट में लिखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए कि सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। उम्रे से वापसी के बाद बाबर आजम लाहौर में जारी रमज़ान टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के नए कोचिंग स्टाफ की तैनाती आइंदा माह के अवाइल में की जाएगी। कौमी टीम के साबिक कोच मिकी आर्थर और PCB में मामला तय पा गए हैं। PCB हुकाम की कौमी क्रिकेट टीम के नए कोचिंग स्टाफ की तैनाती के लिए मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। ज़राए के मुताबिक नए कोचिंग स्टाफ की तैनाती आइंदा माह के अवाइल में की जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।